divisible by 2. What is the meaning of divisible by 2? Only you have to see the unit place of the number, right? If unit place is 0, 2, 4, 6, 8, unit place is even, the number must be divisible by 2. Unit place must be even, right? So if I am asking 2175649 so we have not to look into this कि कितना बड़ा number है. We have to only see the unit digit. If unit digit is even number and this is even in this case, so this number must be divisible by 2. Is it okay? Divisible by 2. And if divisible by 2, right? If I'm asking for divisible by 2 square, anyone can help me. Means divisible by 4. For divisible by 2 or 2 to the power 1, only you have to see the unit place, but for 2 square, right? But for 2 square means 4, we have to see last 2 digits. Last 2 digit of the number. So 92, if you'll see this 92 is divisible or not. So 4 2s are 9, 4 3s are 12. Okay, 92 means is this divisible. So the complete number is divisible by 4. Is it okay? Right? If I'll ask, what is the case for 2 cube divisible by 8? So you have to see last 3 digit number. Last 3 digit number, if last 3 digit divisible by 8, so number must be divisible by 8. So look into this. 8, 6 is 48 and 12, no. So this is divisible by 4 but not divisible by 8. And if we have to find divisible by 2 to the power 4, so we have to see last 4 digit. If last 4 digit divisible by 2 to the power 4 of 16, number must be divisible by 16. Note down, please. Okay, done. Now, if I'm asking the number n is equal to 25432A6, right, is divisible by 4, possible value of A is. Write down in the chat.
Very good. You can write each and every number, possible values, not on only one value. Anmol, very good. Rimjim, very good. Prince, very good. Setu, very good. Kushal, very good. एक बार में पूरे नंबर बेटा. इसी का नाम नोकिया 3 है, मैंने चेंज करने को बोला. What is your name, Nokia 3? Done? Very good. So this A6, right? So A and 6, 16, 36, 56, 76, 96. ये सब डिविजिबल होंगे तो A की पॉसिबल वैल्यूज हुई 1, 3, 5, 7, 9. Right? Divisible by 4. Second, n is equal to 3, 5, 2, A, 8 is divisible by 8. Find value of A. A क्या होगा? Very good. 2A8. Last 3 digit must be divisible by 8. Very good. एट से डिवाइड करूंगा, राइट. 8 अगर 2 टाइम्स में डिवाइड करता तो ये चला जाता 16. ये 20 प्लस A है, राइट. ये आ जाता 4 प्लस A, इस डिजिट पर आ जाता, ये आता 8, राइट. 4 प्लस A एंड 8 डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 8 से 6 जा 48. 8 कब कब आता है 8 के टेबल में? उसके अलावा कहीं नहीं आता है. अब 8 6 जा जाने के लिए A को 0 होना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है, राइट. एक तो ये आ गया. अब ये आने के बाद, राइट, ये आने के बाद दूसरी बात हो सकती है कि डिविजिबिलिटी मेरे पास है 20 एंड 8 का. मैं पहले ही इसे डिवाइड किया, 2 की जगह 3 टाइम्स किया.
2a8 में 24 चला जाएगा ये, राइट। तो 24 अगर चला गया और यहाँ पर 8 बच जाए तब भी ये पॉसिबल है, मतलब a की वैल्यू 4 भी पॉसिबल है। एक और बात हो सकता है, अगर a को मैंने 8 दे दिया होता तो 100% मैं बोलता कि इस पर भी काम कर जाएगा। तो 0, 4, 8 मेरे पास तीन ऑप्शन हो सकते थे उस नंबर के लिए जहां पर आप डिवाइड कर सको। इसे करने का एक और उपाय आप कर सकते थे, या एक और तरीका कर सकते थे, क्योंकि मुझे चाहिए डिविजिबल बाई 8, तो पहले मैं केवल डिविजिबल बाई 4 देखता हूं। 4 के लिए 0, 8, 2, 8, 4, 8, 6, 8, 8, 8, यही नंबर जाएंगे, राइट। और यहाँ पर 2 है। अब इसमें से मेरे को ये देखना है कि कौन सा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद भी इवन नंबर बचता है। अगर मैंने देखा 4 से डिवाइड करने के बाद भी इवन नंबर किसमें बचता है, ये 4, 5 जा 20, ये इवन नंबर है। इसमें एक और 2 आ सकता है, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। यहाँ देखो 4, 5 जा 20, 57, यहाँ नहीं पॉसिबल है। यहाँ देखो 4, ये इवन नंबर है, यहाँ पॉसिबल है, फिर इसमें नहीं होगा, फिर इसमें होगा, अपने आप दिखाई दे दिया। कई तरीके हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के। आई गेस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? सर एक बार वापस समझाइए ना। कौन सा बेटा, कहाँ पर बोलो? सर वो फर्स्ट स्टेप जो आपने की है 26, 4 + a कहाँ से आया आपके? हाँ वही सर। अच्छा, ये 2a8 को आप लिख सकते हो 20 इस पे प्लस a और लास्ट डिजिट 8। ओके सर। मान लो आपके पास जो नंबर दिया रहता है 258 होता, इसका मतलब क्या होता? 8 होता प्लस 50 होता प्लस 200 होता, ऐसा ही होता। यस सर। सही है। तो अगर मैं इसे लिखना चाह रहा हूं, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो 250 प्लस 8 ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। यस सर। राइट, तो ये दोनों 25 को अलग से लिख रहा हूँ, 8 वाले को अलग से लिख रहा हूँ, 10 डिजिट को। उससे अच्छा तरीका आप दूसरे वाले को देखो। दूसरा मेथड में मैंने क्या किया, पहले 4 से डिविजिबल निकाल दिया। 4 के लिए केवल a और 8 चाहिए था। क्या क्या होगा, 0 2, ये 4 नंबर आ गए मेरे पास, 5 नंबर आ गए मेरे पास। अब सोचा कि अगर 8 से डिविजिबल होगा तो जो भी नंबर मेरे पास है उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और फिर भी एक इवन नंबर आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि वो वो 8 से डिविजिबल और है। 2 से डिविजिबल है। हाँ, मतलब 8 से डिविजिबल है, राइट। तो एक क्वेश्चन अब दे रहा हूं, सभी लोग अटेंटिव, राइट। 57269A is divisible by 8. Find value of A.
वेरी गुड. देखा जाए 6 9 a डिविजिबल बाई 8 64 5a. ठीक है ना. अब क्या वैल्यू a की होगी कि दिस विल बी डिविजिबल, तो 7 टाइम्स जाना चाहिए 66. तो a की वैल्यू होनी चाहिए 6. कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट. अरे वाह, वेरी गुड. क्या मेथड किया अलियान ने? सो जो सेकंड वाला मेथड आपने बताया था ना वो वाला. अच्छा चलेगा, दोनों एक ही बात है. एक ही बात है बेटा ये सब. अरविंदा वांट टू आस्क एनीथिंग? वांट टू आस्क एनीथिंग? अरविंदा, हैंड रेज का मतलब होता है यू वांट टू आस्क एनीथिंग ना बेटा. इसलिए चैट में लिखने का मतलब होता है लाइक आई हैव डन इट. राइट. ये हम लोगों ने देखा 16 से डिविजिबल, 8 से, 4 से, 2 से, जो भी डिविजिबिलिटी हो उसकी बात. राइट. नेक्स्ट इज डिविजिबल बाई 3. डिविजिबल बाई 3 में करना क्या होता है कि जितने भी डिजिट्स गिवन है नंबर में, राइट, 2 1 5 6 9 2 1 4, मान लो ये है, इन सब का सम मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए. मींस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4. 2 प्लस 1 3, 5 5 plus 11, 9 plus 2 11, 5 14 plus 16, ये आ गया टोटल 30. ठीक है ना. ये पूरा का पूरा आ गया 30. और 30 के बारे में हम लोग ये पूरे का सम जब किया तो ये 30 आने का मतलब है कि 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है. तो अगर ये 3 से डिविजिबल देखना है तो केवल मुझे यही देखना है कि पूरे का सम मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 हो जाए. राइट. एक क्वेश्चन देता हूं. Possible values of a. बस केयरफुल, पूरे आंसर देना बेटा एक बार में ना, पूरे आंसर, एक एक नहीं, पूरे. फास्ट.
सिंपल क्वेश्चन राइट. अगेन सबको ऐड किया 14 प्लस 9 23 प्लस ए की वैल्यूज क्या होगी 24 हो जाएगी. तो 1 दूंगा या 4 दूंगा या 7 दूंगा तो आई गेट 24 27 और 30 divisible by 3. Is it okay? ओए क्या आवाज आया? Yes, sir. इसके- Yes, sir. क्या It is clear. क्या किया? क्या किया अरविंदा? हाँ ये रहा. हम लोगों ने बात की 2 से हो गया, 2 स्क्वायर से हो गया, 2 क्यूब से हो गया, 2 to the power 4 से हो गया राइट. 3 से हो गया एंड सेम थिंग विथ 9. ना 3 वैल्यूज वहां पर आई. सेम थिंग विथ 9 का मतलब है आप सम करोगे और अगर सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 राइट. एक तो ये गया, एक ये गया, फिर जाएगा आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5. 5 से डिविजिबल के लिए केवल आपको क्या देखना है कि यूनिट प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 5. तो या तो उसमें 0 हो जाए या 5 हो जाए. ये डिविजिबल बाय 5 का केस. 5 स्क्वायर होता तो आपको देखना होता कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 25 हो. मतलब या तो 25 हो जाए या 50 हो जाए या 75 हो जाए या 2 0 हो जाए. ये सब केसेस अगर हो जाए तो मैं बोलूंगा नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 25. 5 क्यूब से होगा तो अगेन जैसा 2 का चल रहा था लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 125. राइट डाउन, लिख के रखो. 9 का भी मैंने बता दिया है, वो भी लिख के रखना. अभी क्वेश्चन दूंगा. Done. Yes. Now see. Seven, 2, 5, 6, 9, A4 is divisible by 9. Find A.
सिंपल है, जल्दी से देखो क्या क्या आ रहे हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। डन। सर ये डिजिटल वाला एक बार आप करके बताना। Yes, sir. डन, Yes, sir. वेरी गुड। अभी देखता जाते हूँ ना, फर्स्ट से शुरुआत करूं। इज डिविजिबल बाय 9। अभी हम लोगों ने फंडा देखा, सबको ऐड करता हूं। 1 + 7 8 + 2 10 + 5 15 + 6 21 21 + 9 30 + 34 + a 34 + a must be divisible by 9। तो अब 9 से डिविजिबल होने के लिए a को क्या होना पड़ेगा, क्या बोलते हो? 9 4 जा 36। a अगर 2 हो जाए तब चलेगा, और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? a तो डिजिट है, उससे आगे तो मैं जा नहीं सकता हूं। तो कितने लोगों का आंसर सही है फर्स्ट का? Me. समझ में आया सभी को? ओके, सेकंड पर आ जाऊं। डिविजिबल बाय 25। 25 के लिए हमने क्या देखा था कि ओनली यू हैव टू सी लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 25, तभी ये होगा। ये A5 बना हुआ है ना। A5 होने का मतलब है लास्ट 2 डिजिट के लिए A को क्या दूं, 2 अगर दूंगा तो 25 बनेगा, और कोई नंबर 7 अगर दूंगा तो 75 बनेगा। ये दोनों ही नंबर मेरे पास ऐसे हैं जिसको 25 से डिवाइड करने पर डिविजिबल होगा, राइट। तो A की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 7 हो सकती है। इज इट ओके? क्लियर है सभी को?
राइट, रब कर लूं इसे। कितने का सर? हाँ 25 ही तो है, 25 में लास्ट टू डिजिट जो फंडा रहा उसी को हमने लगा दिया सर। वेरी गुड अनमोल। थर्ड का देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 9, सबको ऐड करना होगा 9 के लिए। तो 5 + 2 7 + 1 8, 8 + 9 17 2 19, 19 और 6 25 + 5 30 + a को डिविजिबल होना है 30 + a, राइट। a की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू 6 होते ही 36 हो जाएगा, तो a = 6। तो हाँ, e की वैल्यू माइनस हो सकती है? कोई नंबर ऐसा आज तक देखा है क्या? 5 - 4 7? नहीं। डिजिट्स कभी माइनस में थोड़ी लिखे जाते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट में 125 के लिए वी नो कि व्हाट वी हैव टू डू, लास्ट 3 डिजिट जो नंबर है उसको डिवाइड होना चाहिए 125 से। A25, राइट। 125 से डिवाइड होने के लिए पहला नंबर तो 1 ही हो जाता, हो जाएगा 125 a की वैल्यू। फिर 325 भी वर्क करेगा क्या? सोच के देखो तो। नहीं, राइट। 425 वर्क करेगा? No, sir. वेरी गुड। क्या 625 वर्क करेगा? Yes, sir. वेरी गुड। 725, 825, 925। सबसे अधिक जो हमारे पास कैलकुलेशन का है वो 125 एंड 625 के लिए दोनों पे डिविजिबिलिटी आ रही है। तो a की वैल्यू हो गई इधर 1 और 6। कितने लोगों का सही है? सबके सब राइट डाउन यस ऑन माय चैट। दुष्यंत वेरी गुड, अच्युत वेरी गुड, लखविंदर वेरी गुड, अनमोल वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आदित्य वेरी गुड, यान वेरी गुड, प्रिंस वेरी गुड। और ये दिल मांगे मोर। एक बार और क्वेश्चन इस तरह के। चलो Yes, इस बार sir. ना नो गड़बड़ प्लीज ना, ध्यान से। मम्मी। अरे मम्मी को बुला रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो जब हाल करता है। क्या कुछ खाने को चाहिए क्या? सच बता। फर्स्ट n = 217a52। सेकंड n = 51025a। थर्ड n = 551126a। फोर्थ A62014। सर ये सेकंड में थर्ड क्या लिख रहे हैं? थर्ड लेटर राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिविजिबल दिया हुआ है ये 9 से। एक बार तब के लिए करना है, एक बार आपको करना है 8 से, राइट। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। सेकेंड वाले में क्वेश्चन जो है आपको वो है एक बार 25 से आपको देखना है, एक बार 3 से देखना है। थर्ड वाले में आपको देखना है एक बार 8 से देखना है, एक बार 5 से देखना है। फोर्थ वाले में देखना है 9 से देखना है एंड 2 से देखना है, राइट। फिफ्थ वाले में देखना है 9 से एंड 25 से। मतलब इनफैक्ट आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डू इट फास्ट।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑल डन, वेरी गुड अनमोल, डूइंग वेरी गुड बेटा. Mank, want to ask anything? Mank? Anand. वेरी गुड निश्चल, आगे बढ़ते जाओ, थोड़ा फास्ट करो. हो गया. वेरी गुड, 2 मिनट सभी को और ट्राई करने दो. Yes, start. Should I start? Yes, sir. Sure. Start with question number first. ना? बहुत ही सिंपल. 2 plus 3, 7, 10, 15 to 17. 17 plus A. 17 plus A means A is equal to 1. 18 हो जाएगा तो 9 से डिविजिबल है, राइट. डिविजिबल बाई फर्स्ट केस 9 से डिविजिबल का, डिविजिबल बाई 8. तो मैं ये बोलूं अगर 52 ऑलरेडी डिविजिबल है मेरे पास, जो गिवन नंबर है 52 डिविजिबल है, राइट, 4 से. 52 डिविजिबल है 4 से, तो अब 1 क्या क्या नंबर हो सकता है? 152, 252, 352, 452, 552, ऐसे ही चल रहा होगा. इसे देखो, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं और अगर इवन नंबर है तो मैं बोलूंगा सीधा कि ये 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट. 4 से डिवाइड किया, यस, इवन नंबर आ गया. सेकंड वाले को 4 से डिवाइड किया, ऑड नंबर आ गया. मतलब ये अब ऑल्टरनेट वाले जो हैं सब के सब मिल जाएंगे. 152, 352, 552, 752, 952. मतलब एक ही वैल्यू हो गई 1, 3, 5, 7, 9. ये सब के सब ऐसे नंबर्स हैं जिनको एक ही जगह में रखूंगा तो ये डिविजिबल होगा 8 से. आई गेस सबका सही होगा, राइट. 25 से डिविजिबल होने के लिए वी नो दैट कि ये जो नंबर है इसे 5 स्क्वायर से डिविजिबल 25 से होना चाहिए. तो ए की वैल्यू आप क्या आ सकती है? 0. और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. मतलब सीधा का सीधा हमारे पास a इज इक्वल टू 0 आया 25 के लिए. 3 से डिविजिबल के लिए बहुत सारे केसेस आ सकते हैं. 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 +
13 plus a, 13 plus a, राइट 13 प्लस a, तो 13 प्लस a को 3 से डिविजिबल होने के लिए a को 2 3 और ऐड कर दो, 3 और ऐड कर दो, अपने आप नंबर आ गया। 2 में 3 ऐड करूंगा, 2 ऐड करने पर अगर वो 3 से डिविजिबल है तो प्लस और 3 करूंगा तब भी डिविजिबल होगा, और ऐसे ही आगे बढ़ गया, राइट। सर हमको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी है ना। हाँ, पहले केस 25 से डिविजिबल है तब के लिए, और दूसरे केस जब 3 से डिविजिबल है तब के लिए। ओके है, आगे बढ़ूं, थर्ड पे आ जाओ। डिविजिबल बाय राइट, ऊपर का भी हटा ही लेता हूं, राइट। डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होने के लिए तो बड़ा आसान होगा, a की वैल्यू दो ही चीज हो सकती है 5 के लिए, या तो 0 हो जाए लास्ट में या 5 हो जाए, तब ये डिविजिबल होगा, राइट। 8 से डिविजिबल के लिए क्या होगा, 26a, ये 26a है, उसे डिविजिबल होना चाहिए 8 से, राइट। तो 8 से डिविजिबल के लिए ऑब्वियसली वी नो दैट 26 से 8 को डिवाइड करूंगा, राइट, 8 3 24, राइट, 2 बच गया, a बच गया। ये 2 एक कब डिविजिबल होगा, a की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये डिविजिबल हो, 4 4 डायरेक्टली कमिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सर उसका सेकंड पार्ट 05 तो हो गया था बेटा, 5 से डिविजिबल के लिए ओके पहले ही कर लिया था उसे। तो 9 से डिविजिबल करने मेरे को ना, a शुरू में है, 6 + 2 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + a, तो a की वैल्यू क्या रखूं कि ये 9 से डिविजिबल होगा, तो क्या ऐड करूं कि ये 9 से डिविजिबल होगा, तो a = 5। वेरी गुड अनमोल। 2 के लिए मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है, a की कुछ भी वैल्यू रख दो, क्योंकि आखिरी का नंबर 4 है तो ऑलरेडी डिविजिबल है, 2 किसी भी के लिए भी डिविजिबल होगा, तो a की वैल्यू जो भी चाहो 1 2 3 4 9 तक, 0 to 9 ना। यस बेटा, 0 to 9। लास्ट क्वेश्चन बस 1। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वेरी गुड मोल, यू आर डूइंग वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस पे हम लोग क्या वर्किंग रखें जिस पर काम बनेगा। 9 से डिविजिबल के लिए 5 + 2 7, 7 + 6 13, 14 15 16, 16 + 5 21 + 8, कुछ ऐसा आ रहा है। अब क्या नंबर a को रखूं कि 9 के टेबल में वो नंबर आता हो, तो वेरी गुड, 6 a = 6, राइट। 0 नहीं बेटा, 0 रखने पर तो वो 3 से होगा, 9 से नहीं होगा, 9 से मीन्स 9 से, राइट। एंड 25 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर को 5 और 0 होना चाहिए, तभी 25 से होगा, a की वैल्यू 0। खुशी, want to ask anything? I'm not able to reply at the chat. Chat पे Yes, sir. write down something. Mang, it's coming. खुशी, it's coming. You have written hi. Not, yeah, so it's not going to the group. Why to go to the group? No one can send this to the group. All can send to me only. Oh, sorry, sir. वो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, दो लोग उधर गप करेंगे, और क्या हालचाल, कैसा चल रहा है, सब ठीक तो? Yes, sir. It's only to me, right? किसे लिखना है, कुछ लिखना है किसी को, मैं लिख दूंगा, बोलो। Yes, sir. चलो, ओके, क्लियर। तो अब मेरे पास एक अच्छी लिस्टिंग हो गई। क्या क्या लिस्टिंग हो गई मेरे पास? 2 से डिविजिबिलिटी देख लिया, 2 स्क्वायर देख लिया, 2 क्यूब देख लिया, 2 के पावर जो भी हो, 2 to the power 4 देख लिया, एंड सो ऑन। 5 देख लिया, 5 स्क्वायर देख लिया, 5 क्यूब भी देख लिया, एंड एवरीथिंग।
राइट। 3 भी देख लिया हमने और 3 स्क्वायर मीन्स 9 देख लिया। इतने चार्ट तो मेरे पास बन गए। एक बेसिक 7 कभी और मौका मिलेगा बताऊंगा। 7 यूजुअली आपसे पूछा नहीं जाता है, राइट। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 अब आया, राइट। तो 6 या इस तरह के अगर नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं तो हमें ख्याल क्या रखना है कि ये सब नंबर अब प्राइम वाले नहीं। जो पहले नंबर थे वो एक ही फैक्टर वाले नंबर आ रहे थे, अब ये प्राइम नहीं है। तो ये नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर को सबसे पहला काम आपका होगा को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम? को प्राइम फैक्टर वो होता है जिसमें दो फैक्टर मैंने निकाले उनका HCF 1 हो जाए। जैसे 2 और 3 लूंगा तो HCF 1 है, मतलब एक दूसरे को वो डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं 72 लूं तो जल्दी से चैट में आप लोग लिखोगे कि दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। राइट डाउन। मुझे को प्राइम फैक्टर चाहिए, ये ख्याल रखना। फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। व्हाट इज को प्राइम फैक्टर? अरे 3 into 2 थोड़ी होगा। 3 into 2 72 होता है क्या? नंबर तो वो भी होना चाहिए जो इसको 72 कर दे। 18 4 का HCF देखो 1 है क्या? तो 9 into 8 12 इंटू बोलना तो है ही नहीं, चैट पे लिखना है सिर्फ। 12 into 6 का HCF 1 है क्या? मृदुल 13 2 2 ये क्या है? 9 into 8 2 cube into 3 square 8 into 9 9 into 8 सेतु यार डूइंग वेरी गुड यार। काफी चेंज किया तूने अपने आप को, बहुत अच्छा लगा। मृदुल 3 square 2 cube। खुशी 12 and 6 का HCF क्या होगा? हम्म 12 and 6 का HCF होगा 6। सही है ना? वो वर्क नहीं करेगा। वेरी गुड। अधिकतर लोगों का, मेरे ख्याल से सभी लोगों का करीब करीब सही है। 9 and 8 2 cube and 3 square, राइट। 9 and 8 मतलब नंबर को 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन से नंबर इज डिविजिबल बाय 72, right? If number is divisible by 9 as well as number is divisible by 8, so number must be divisible by 72. Right? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 24 के लिए क्या बोलोगे बताओ तो? वेरी गुड मैम। खुशी वेरी गुड। सेतु वेरी गुड। सेतु क्या कर रहा है? मैं वेरी गुड बोल दिया गलती से तेरे को। 4 and 6 का एलसीएम देख तो क्या आएगा? HCF तो देखना पड़ेगा तेरे को, दोनों का HCF 1 होना चाहिए ना। एक नंबर 8 गया, एक नंबर 3 गया। निश्चल वेरी गुड। प्रिंस वेरी गुड। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। ये स्टार 2 किसका? रिसेट ये स्टार 2 का मतलब क्या हुआ? समझ गया मैं। और समझ गया। मतलब नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन से नंबर इज डिविजिबल बाय 24, राइट। तो अब ना मैं ना इस बार थोड़ा सा एक रिस्क ले रहा हूं अपने लिए ही, बट चलेगा। n is equal to 5 to 7 a b 6। थोड़ा सा चेंज कर दूं यार। 6b is divisible by, क्या हुआ? क्या धीरे धीरे खुशखुश आवाज आ रही है? जैसे सब ठीक है? Yes, sir. divisible by 12। find
value or values of A and B. A और B की values क्या होगी? Do it fast. वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग काफी अच्छा कर लोगे। ये देखना बेसिक से ना आप धीरे धीरे क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और टफ लेवल पर जाने शुरू हो जाते हैं, राइट। शुरुआत ऐसे ही होती है, बहुत छोटी छोटी बेसिक से होते 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 इसमें 7 का डिविजिबिलिटी भी बात करेंगे हम लोग, और बड़ा प्यारा तरीका भी है उसका। यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मालूम। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। डन। चलो ये अच्छी बात, देखते हैं। डिविजिबल बाय 8 एंड 3। पहले 3 से देख लें। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या केसेस होंगे वो देख लेता हूं, एंड 8 से डिविजिबल के लिए, राइट। तो A6B मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज, मुझे केवल लास्ट 2 डिजिट चाहिए, राइट। केवल 6 के साथ में तो 6 0 6 4 6 8। 4 से डिविजिबल के लिए मेरे पास 3 केस आ गए, क्योंकि डिविजिबल बाय 12 मेरे को चाहिए। b की वैल्यू या तो 0 होगी, या b की वैल्यू 4 होगी, या b की वैल्यू 8 होगी, राइट। अब a चाहिए। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20 + a + b, राइट। तो 20
प्लस ए प्लस बी। बी की वैल्यू जब 0 मैंने रखा तो 20 प्लस ए आ गया। अब 20 प्लस ए को डिवाइड किससे होना है? 3 से। तो ए की वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या हो सकती है? तो ए की वैल्यूज यहाँ पर इसे रब कर लेता हूं, यही लिखते हैं। ए की वैल्यूज पॉसिबल है, राइट, 1 4 7, राइट। कब? जब बी की वैल्यू हमने रखा 0, फर्स्ट केस। सेकंड, जब बी की वैल्यू हमने 4 रख दी, राइट, ये हो गया 24 प्लस ए। 24 प्लस ए जैसे होगा तो ए की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या होंगे? तो ऑब्वियस वाली बातें होंगी। कौन कौन सी? 24 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, मतलब ए की वैल्यूज हो सकती है 0 3 6 9। थर्ड केस, जब मैंने b को 8 रख दिया तो 28 प्लस ए, मतलब a की वैल्यू b को 8 रखा तो 2 5 8। ये आपका टोटल आंसर जाएगा। यस प्रिंस। फिर से समझा। कहां पर बेटा बताओ, कहां पर नहीं समझ में आया? ये 8 और 3 कैसे आया? मतलब कहां पर 8 और 3? हमने कौन से केस में? 12 के लिए 8 और 3 लिया ना। 12 के लिए? 12 के लिए 8 3 नहीं हुआ बेटा, 12 के लिए 4 और 3 हुआ ना। 12 तो 2 फैक्टर होंगे ना, वो तो पिछला क्वेश्चन का लिखा हुआ था बेटा, 4 and 3। मेरे को भी लगा वो लिखा हुआ, फिर ध्यान से देखा कि 12 तो है, वो तो 4 and 3 है सिर्फ। तो 4 का मतलब क्या हुआ? लास्ट 2 डिजिट, इसीलिए तो इन दोनों को केवल देखा, 6b को देखा सिर्फ, और 3 के लिए सबका सम देखा। तो 6b को देखूंगा तो b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी डिविजिबल के लिए, बताओ? 0 4 8 होगा। 4 8। ओके सर, समझ में सर। ठीक है, ये डिविजिबल बाई 12 के लिए। ठीक है, मैं रब कर सकता हूं इसे, राइट। देखना, Yes, sir. अभी देता हूं, और देता हूं बेटा, इसी तरह के और क्वेश्चन देता हूं। अभी तो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होता। इसी में थोड़ा सा चेंज करके दूंगा, तो ध्यान से ना। कंसेप्ट सबको क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहोगे आप में से? क्लियर? प्रिंस, प्रिंस अदानी, क्या नाम है यार, मेरा नाम से झलकता है तेरा। तो ये ऐसा ही तुम भी ये कर लेना। 527A6B4 डिविजिबल बाई 36। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। टेक योर टाइम, आराम से ना, नो हड़बड़। जो कभी कभी कर देता है गड़बड़।
पता है पीयूषा दीदी के वो बेटे का नाम क्या है? पीयूषा दीदी के बेटे का नाम क्या है? पीयूषा दीदी। Very good. Alian, very good. Visit, very good. Anmol, very good. 2 मिनट और, सब लोगों को टाइम दे दो, 2 मिनट और। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का आ गया। वेरी गुड। हाँ, इजी तो है ही। वेरी गुड रिसर्च। चलो स्टार्ट करता हूँ। डिविजल बाय 36। 36 का दो फैक्टर क्या क्या होगा? 9 एंड 4। 4 के लिए B4 जो होगा वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो देखें। 0 4 4 4 8 4, ये 3 पॉसिबिलिटीज है। 0 4 4 4 8 4, राइट। ये 3 पॉसिबल केस आपके पास यहाँ पर आ गए, राइट। सर 6 हाँ बेटा 6 भी है। 0 4, राइट, सभी इवन नंबर वाले ना। अब ये नंबर आने के बाद मेरे पास b की वैल्यूज जो है 0 4 6 8 ये सब आ गए, राइट। एंड जो भी जितने इवन नंबर है तो 2 भी होगा, 2 भी आ जाए। हाँ बेटा, जितने भी इवन नंबर है, इवन मतलब जितने भी, राइट, सब आ गए। अब आने के बाद अब मेरे को देखना है कि ये 9 से डिविजिबल हो, तो 5 प्लस 7। सर 24 भी मिसिंग है। ध्यान से देखोगे ना, दिखेगा ना। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस a प्लस b, राइट। 24 प्लस a प्लस b, ये आ गया। अब b की वैल्यूज मेरे पास गिवन है। पहला मैंने रखा 0 ना, तो 24 प्लस a, b की वैल्यू रखा 2, 26 प्लस a, b की वैल्यू रखा 4, 28 प्लस a, ऐसे ही बढ़ते जाना मेरे को, राइट। इस समय मेरे को डिविजिबल चाहिए 9 से, तो a की वैल्यू इस समय मेरे पास आएगी 3, इस समय आएगा 1, इस समय आएगा, ध्यान से देखो, 8 राइट। ये चलता जाएगा, राइट, ऐसे ही चलता जाएगा आगे के लिए। जब यहाँ पर 30 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा एंड ब्ला 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 ब्ला। इज इट ओके? सही है? यस सर। एवरीवन ओके? हाँ, तो एक क्वेश्चन और इस पे ना, फिर अभी बताऊंगा डिविजिबल बाय 11 का केस। सर एक ही दो ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो मतलब अभी तो सिंपल केस कर रहे हैं ना बेटा, जैसे इसके ना कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आएंगे वहां आने शुरू हो जाते हैं ये सब अधिक वैल्यूज भी, राइट। ये नंबर है 527A6B42 is divisible by 24. Find possible values of A and B.
गया सर। Done. Yes sir. Very good. Yes, sure. यस, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मुझे चाहिए सबसे पहला चीज हमें क्या देखना है कि वी हैव टू सी दिस कि मुझे डिविजिबिलिटी केस क्या है। तो दिस इज 24। 24 नंबर जो है इसका मुझे को प्राइम फैक्टर्स चाहिए कि दोनों का HCF 1 होगा। एक नंबर 3 होगा, एक नंबर 8 होगा। इज इट ओके? Yes, sir. ये क्लियर है बेटा? फ्रेंड्स ओके राइट? तो मतलब मुझे चाहिए 3 से डिविजिबल एज वेल एज 8 से डिविजिबल। 3 के लिए वी नो दैट इस सबका सम मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। तो 5 + 2 7 7 14 20 24 26 26 प्लस A प्लस B राइट, ये होना चाहिए 3 से डिविजिबल। मतलब A प्लस B की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो A प्लस B की वैल्यू 1 पॉसिबल है, A प्लस B की वैल्यू 4 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, 13 पॉसिबल है, 16 पॉसिबल है, उससे ऊपर 19 नहीं जा सकता राइट? क्योंकि कोई A B तो 10 तो हो नहीं सकता ना। इतने पॉसिबल केस है A प्लस B की। एक तो हमारे पास केवल 3 से डिविजिबिलिटी के लिए ये बात आ गई। अब B42 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 राइट? अब ये 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? B42 को ये सोचना है हमें राइट? क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास? 0 से लेके सर एक में भी डिवाइड नहीं हो रहा है। वेरी गुड। सुनो तो 0 से लेके मेरे पास हर एक वैल्यूज है। कहां तक वैल्यूज है? 9 तक वैल्यूज है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर तो जो नंबर है B42 ये 42 है जो वो अपने आप में 4 से ही डिविजिबल नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा का पूरा नंबर में 8 से डिविजिबल होने का केस ही नहीं आएगा। मतलब दिस नंबर मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाई 8। सो 8 से अगर डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तब भी मैं नहीं बोल सकता कि ये 24 से डिविजिबल है। सो 100% वी कैन से कि A और B की वैल्यूज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात राइट? कभी कभी क्वेश्चन के ट्विस्ट को समझना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ से डिविजिबल या नॉट डिविजिबल। ठीक है, इसको आगे बढ़े नाउ। डिविजिबल बाय 11 जल्दी से। एक और क्वेश्चन दूं या आगे बढ़ सकता हूं?
सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ सकता हूँ। सर एक और क्वेश्चन, एक और सर एक और क्वेश्चन। चलो देता हूँ। n is equals to 721a69b is divisible by 36. Find A and B. Do it fast. Sir, done. Very good. Sir, done. Very Sir, good. done. So done. 7 plus 2 plus 1 plus 8 plus Good. plus 9 plus 2, 10 plus 15 plus 2 plus A, म्यूट में 5 ones. कंट्रोल अलियान कंट्रोल। Sorry, sir. Sir, done. Sir done. Yes, very good. Very good. वेरी गुड वेरी गुड। 2 मिनट और सभी को करने दो। चलो स्टार्ट करें। वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए। वेरी गुड यार, ये अच्छा बैच है अपना। वेरी गुड। हो जाएगा नो प्रॉब्लम। तो 9 and 4 राइट। देखना ध्यान से ना, 9 and 4 से डिविजिबल के 90
के साथ में 90 तो नहीं होगा, 92 पॉसिबल है, 96 पॉसिबल है, बस और कुछ नंबर है नहीं अपने पास, राइट। एंड 4 से डिविजिबल के लिए 9 के लिए 7 + 2 9 + 1 10, 10 + 6 16, 9 25, 25 + a + b, जिसमें b की वैल्यू मेरे पास एक बार 2 है, एक बार 6 है, b की वैल्यू 2 रख दिया तो 27 + a हो गया, एंड b की वैल्यू अगर मैंने 6 रख दी तो 31 + a हो गया। अब केवल इतना सोचना है a की वैल्यूज क्या पॉसिबल है, राइट। तो फर्स्ट वाले में एक ट्रिकी बात ये रहेगी कि फर्स्ट वाले में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, या तो a 0 हो जाए तब b, या 9 हो जाए तब। सेकंड वाले में 9 4 या 36, राइट। b जब 2 है तो a की वैल्यू 0 है, b जब 2 है तो a की वैल्यू 9 है, b जब 6 है तो a की वैल्यू 5। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि डिविजिबल बाय 11 की बात क्या रहेगी, राइट। डिविजिबल बाय 11 का केस क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, मान लो इट्स गिवन 2 1 5 7 9 6 2 5 4, बड़ा सा नंबर, इसे 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो आप ना या तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट कर सकते हो, या जो भी मैक्सिमम जहां तक जा रहा है वहां से। चलो यूनिट प्लेस हमेशा फिक्स रहेगा कि यूनिट है वो, राइट। ऑल्टरनेट नंबर्स को पिक करो, राइट। इनका सम ले लेते हैं, जो अल्टरनेट नंबर यहाँ पर आए। 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22, राइट। सेकेंड दूसरी चीज 1 7 6 5, 1 + 7 8, 8 + 6 14, 14 + 5 19, ये दो नंबर आ गए। एक इवन वाले प्लेसेस में जो नंबर थे वो ऐड कर लिया हमने, एक ऑड वाले प्लेसेस थे वो नंबर को ऐड कर दिया। दोनों में से जो भी बड़ा छोटा है दोनों को माइनस कर लो। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर जो बड़े से छोटे को जो भी आपने माइनस किया, अगर नंबर 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा हो तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11 होगा। मतलब हमने क्या किया, ऑड प्लेसेस का सम किया, इवन प्लेसेस का सम किया, दोनों जो हमारे पास आ गया फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को माइनस किया, बड़े से छोटा या जो भी बोल लो, या तो ये 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 3, जो कि ना ही 0 है ना 3 का मल्टीपल है। ये नंबर मेरा 3 से 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नोट डाउन प्लीज। Done, sir. वेरी गुड, हो गया सभी का?
यस सर। वेरी गुड। तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग बताओगे। राइट, ये 1 2 3 4 5 नंबर है। कौन कौन से इसमें 11 से डिविजिबल है? जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। पूरे को चेक कर लो, नॉट बैड। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 मिनट और सबको वेट करने दो थोड़ा सा। चलो स्टार्ट। फर्स्ट वन क्या बोलते हो, है या नहीं? Not divisible. नो Not सर। divisible. नॉट डिविजिबल सर। सेकंड वन, Not divisible. नॉट डिविजिबल। थर्ड वन, Divisible. डिविजिबल, फोर्थ वन, डिविजिबल। Fifth one फिफ्थ भी divisible. वन, यस यस। है या नहीं? यस सर है। यस सर। पैटर्न था, अगर ध्यान से देखो तो ये पैटर्न था 1 2 3 4 3 2 1। ये 1 1 1 1 का स्क्वायर होता है। ये नंबर को अगर आप 6 6 6 अगर 3 नंबर्स ऐसा लिखते हुए जाओगे हमेशा ना, इस तरह का सेम तरह के पैटर्न के नंबर, वो हमेशा डिविजिबल होता है। इसलिए मेरे को याद था, मालूम था, तो मैंने जल्दी से वही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। n is equal to 5 4 3 2 a 6 2 is divisible by 11. Find a. a निकालना है आपने।
Done, गया? sir. वेरी गुड। सर इजी क्वेश्चन। हाँ बेटा, सब इजी ही रहता है, कंसेप्ट एक बार हो जाने के बाद ना सब इजी ही लगते हैं, कोई दिक्कत ना होती। इवन एंड ऑड प्लेसेस ना, 2a 3 5 5 + 3 8 + 2 10 10 + a, ये हो गया। सेकंड मेरे पास है 4 + 2 6 + 6 12, राइट, 12 मेरे पास। दो बातें हो सकती है, a = या तो 2 हो जाए, तब ये खत्म हो गया सीधा का सीधा। अब ये 11 होने के लिए पॉसिबल तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल हो पाए, मतलब a = होगा तो ये 12 - 12 हो गया, राइट। तो अपने आप में ये कैंसिल हो जाना। ठीक है, क्या पॉसिबल हो सकता था, ये दोनों का डिफरेंस 11 आ जाए ना, तो 12 - 10 - a 11 आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? अभी देख लेते हैं। ये आ गया 2 - a = 11, तो a की वैल्यू आ गई -9, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात हो सकती थी 10 - a -12 की वैल्यू 11 हो जाए, राइट, तो a की वैल्यू फिर से नेगेटिव आ गया, जो पॉसिबल नहीं है, मतलब केवल जो आपने एक वैल्यू निकाली है a = 2 वही पॉसिबल है, उसके अलावा कोई और केसेस नहीं, राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, तो ध्यान से ना। n = 7 2 6 9 a 4 3 b is divisible by 22। देखो ये अब एकदम चेंज हो गया क्वेश्चन, राइट। 22, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपके पास पूरा का पूरा इसके लिए 4 मिनट है, टेक योर टाइम। ओके सर। डन, Yes. वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. डन। Done.
Very good, very good. वेरी गुड। हाँ, बी की वैल्यूज तो सीधा आपके पास आ रही है 0 2 4 6 2 4 राइट। 2 2 4 6 8 अब ए की वैल्यूज के लिए वर्क करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू 7 6 a 4 3 7 plus 6 13 13 plus 3 16 plus a, and secondly this is 2 plus 9 11 11 plus 4 15 plus b, right? ये दोनों 0 होने चाहिए या 11 होने चाहिए, तो ये आ गया 1 plus a minus b। तो 0 होने के लिए तो बड़ा अच्छा है कि a 1 plus a minus b को ही 1 हो जाए, राइट? मतलब ये 0 हो जाए तो b minus a की वैल्यू 1 हो जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन आ गए आपके, क्योंकि b की वैल्यूज गिवन है, 0 नहीं पॉसिबल, 2 पॉसिबल है, 2 होने पर a का वैल्यू हो जाएगा 1, 4 होने पर a की वैल्यू 3 5 7। केस फर्स्ट, सही है। Yes. अगर 1 plus a minus b की वैल्यू 11 हो जाए तो a minus b की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट? b 0 गिवन है, 2 गिवन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि a की वैल्यू 10 से ऊपर चली जाए, राइट? तो जो आप लोगों ने आंसर निकाला था वेरी गुड, बिल्कुल सही है, राइट? एवरीवन गॉट द पॉइंट? Yes, sir. समझ में आई सबको? Yes. यस सर। तो ये एक एकदम बेसिक क्लास हमने लिया था। नेक्स्ट क्लास भी कुछ इसी तरह के टॉपिक को पकड़ूंगा, वहां से काम करूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मेरे को सबसे शुरू में ही यही याद दिलाना कि डिविजिबल बाय 7 सर आपने बोला हुआ था, एक उसके अच्छे अच्छे कुछ चीजें दिखाई ना, तो डिविजिबल बाय 7 करूंगा एंड कुछ और अच्छे इरैशनलिटी रैशनलिटी की बातें करेंगे, ठीक है? Yes, sir. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, Thank you, sir. थैंक यू सर। एंजॉय एंड बी सेफ।